Hello everyone. Today we are going to talk about a new story of your ICSE class 10 treasure trove. Story number 10, All Summer in a Day. Right guys, so this is a very beautiful story. Okay, and a very interesting as well, right? By Ray Douglas Bradbury. Okay, the poet of this story is Ray Douglas Bradbury. Okay, now just see this title. Okay, see this title and just uh, think for some time. Okay, what can you predict about the title? That what will be in this whole story? What can you predict? All summer in a day means what is this? All summer in a day. So this is a very excited uh, title, All Summer in a Day. Now this is written by Ray Bradbury. First of all, see these two portraits in which in first one you are seeing the sun, right? You could see the sun, right? In the second you could see something rain, right? So what is the relation between them? Okay, what is the relation between these two things? Okay, you will say these both are natural, but no, I'm talking about in the story. What can you first of all read the title very carefully, then see these both portraits. All summer in a day means, will they be all summer in a day? Means पूरे दिन में एक ही समर होगी? मीन्स व्हाट इज दिस, राइट? इसका मतलब यहाँ पे आई टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल let's check in one more thing we are going to do, line by line explanation. Okay, line by line explanation of this whole story. So it is really very lengthy, so yeah, we'll cover it. Okay, now let's see the some cheap characteristics of the story. Okay, as I told you, there is a relationship between sun and this rain, so that we're going to see what is the relation between sun and rain. Okay, the different relation. Okay, sorry, different relation, right? So we're going to see cheap characters in the story. There are main four characters in the story. Okay, and those four characters are these. um, See, the first one is itself a sun, which I told you. Next is planet. Third is this girl. Fourth is this rain. Now, the sun and rain is okay to you. What is this? This is a planet Venus. Okay, this is a planet Venus, and this is a girl named Margot. This is a girl named Margot who used to live very exhaustively, right? She is a very frail girl. Okay, she looks very exhausted, white. Okay, means she is looking very exhausted and failed. Okay, she is very failed girl, as you can see in this portrait as well. So let's talk about what is the relation between these two guys. Okay, and what is the relation between these two guys. Okay, so let's talk about the summary. Okay, so what is the summary of this All Summer in a Day? This poem, this set in a this set in a planet, other planet, in an other planet, Venus. Okay, this story, the pupil used to live. Okay, the pupil used to live in on Venus. According to this story, Venus has oxygen and Venus has life. That's why people are living on the Venus, right? But in actual, okay, in real, we all know there is no life. We all know that there is a acid rain. Okay, on Venus there is a rain of sulfuric acid. Okay, sulfuric acid. The rain of sulfuric acid. वीनस पे कैसी रेन होती है? सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है. ओके, तो ऑब्वियसली लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट देयर, बट इस स्टोरी के अकॉर्डिंग लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं वीनस पर. ओके, तो वीनस पर कई सारे बच्चे आते हैं. ओके, क्योंकि
कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो लाइक वीनस पर आ जाते हैं अपने बच्चों को लेके, और क्या नाम है वहाँ पर लाइफ एक लाइक एग्जिस्टेंस सेटल करते हैं, लाइक आप कह सकते हैं सिविलाइजेशन सेटल करते हैं। ओके, सिविलाइजेशन को यहाँ पे सेटअप करते हैं। साथ ही साथ वो लोग रहते हैं बिल्कुल अर्थ की तरह, जो प्लैनेट वीनस है वो बिल्कुल अर्थ की तरह है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि इस प्लैनेट वीनस में सबसे स्ट्रेंज बात होती है कि वहाँ पे 7 साल में सिर्फ एक बार सूरज दिखता है। ओके, 7 साल में सिर्फ एक बार सन अपीयर होता है। ओके, और कितने टाइम के लिए? जस्ट फॉर 1 आवर, जस्ट फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए सिर्फ 7 साल में एक बार सूरज निकलता है, एक दिन के लिए। बाकी के टाइम क्या होता रहता है? बाकी के टाइम वहाँ पर होता रहता है रेन। बाकी के टाइम वहाँ पर रेन होती रहती है। किसकी? नॉर्मल वाटर की रेन यहाँ पे बताई गई है। वैसे हम सबको पता है कि रियलिटी में सल्फ्यूरिक एसिड की रेन होती है, बट यहाँ पर वाटर रेन बताई गई है। ओके, तो ये बहुत स्ट्रेन बात है कि 7 साल में सिर्फ एक बार 1 घंटे के लिए, एक दिन में, 7 साल के बाद एक दिन में सूरज निकलता है सिर्फ 1 घंटे के लिए। ओके, और उसी में खुश रहते हैं ये लोग, मतलब उसी चीज़ को एग्जॉस्ट कर, उसी चीज़ को ये लोग मतलब जी लेते हैं अच्छे से, सूरज को, उसकी वार्मथ को ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो मार्गोट होती है, मार्गोट जो मैंने लड़की बताई थी अभी, जो कि बहुत एग्जॉस्टेड रहती थी, वो एक इंट्रोवर्ट गर्ल थी। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो किसी से ज़्यादा बातचीत ना करे, ओके, अपने काम से काम रखे, क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं करते थे। और जब आप लोग पता है, जब लोग किसी को पसंद नहीं करते, सोचो आप एक क्लासमेट में आप एक अकेले ऐसे बच्चे हो जैसे आपको कोई पसंद नहीं करता, तो आपको कैसा फील होगा? आप किसी से बोलेंगे नहीं, आप इंट्रोवर्ट बन जाएंगे। आप इंट्रोवर्ट बन जाएंगे क्योंकि और बच्चे जो हैं वो आपसे बात नहीं करते हैं। ओके, अब इसका रीज़न समझ लो, मार्गोट से लोग बात क्यों नहीं करते थे? जो बच्चे हैं वो इतना चिढ़ते क्यों थे मार्गोट से? क्योंकि मार्गोट ने सन को देखा था। मार्गोट धरती से अभी कुछ दिनों पहले धरती से वीनस पर आई थी, कुछ सालों पहले। ओके, और उसे पता है कि सन कैसा होता है। एग्जैक्टली उसे नहीं पता है, क्योंकि वो जब बहुत छोटी थी, when she was an infant just for few months, okay, just of few months, she used to live on earth, and she knew what is the heat of sun. उसे उसकी वार्मथ पता थी सन की, उसकी हीट उसे आज भी पता थी मार्गोट को, राइट। तो मार्गोट सिंस और बच्चों ने कभी सूरज को नहीं देखा था, मार्गोट ने देखा नहीं था बट फील किया था। ओके, फील किया था। ओके, और उसने देखा भी था बट वो थोड़ा सा भूल गई थी। ओके, तो इसलिए यही एक रीज़न था कि बच्चे उससे इतना क्यों चिढ़ते थे। इसका रीज़न बस यही था कि क्योंकि मार्गोट जो थी उसने सन को देखा था, वो धरती से कुछ सालों पहले ही आई है वीनस पर। ओके, एंड ड्यू टू दिस रीज़न पीपल यूज्ड टू एंग्री विद मार्गोट। ओके, द चिल्ड्रन ऑफ दैट स्कूल ऑफ वीनस, दे यूज्ड टू एंग्री टू मार्गोट। ओके, एंड क्योंकि मार्गोट वहाँ पे बहुत हेल्दी थी, बट जब से वो वीनस पे आई है तब से वो एक पेल वाइट, उसका पेल वाइट एग्जॉस्टेड गर्ल, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मार्गोट की। पेल वाइट एग्जॉस्टेड गर्ल बन गई थी जब से वो वीनस पर रह रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ है, ये मैंने पूरी समरी बता दी आप लोगों को। ओके, और क्या यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर्स और हैं। यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर, एक माइनर कैरेक्टर और है, मेन नहीं माइनर कैरेक्टर और हैं। एक बच्चा,
दो हैं, सॉरी एक नहीं, दो माइनर कैरेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट वन इटसेल्फ अ टीचर ऑफ मार्गोट, ओके, और एक बच्चा जिसका नाम है विलियम. ओके, विलियम एक बच्चा है जो कि माइनर कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के. तो यहाँ पे कितने हो गए, सन हो गया, वीनस हो गया, मार्गोट हो गई, रेन हो गया, टीचर हो गया, विलियम हो गया. ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि कितने लिविंग और कितने नॉन लिविंग कैरेक्टर्स थे. तो 3 नॉन लिविंग कैरेक्टर्स थे, 3 ही लिविंग कैरेक्टर्स थे. नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, सन हो गया, वीनस हो गया, रेन हो गई. ओके, और लिविंग कौन कौन से थे, मार्गोट हो गई, टीचर हो गया, और इटसेल्फ अ बॉय हु यूज्ड टू प्रोटेस्ट दिस गर्ल, दिस मार्गोट विलियम. ओके, ये जो विलियम लड़का है ये थोड़ा मक्कार होता है, ही इज लिटिल नटोरियस एंड ही यूज्ड टू प्रोटेस्ट दिस गर्ल. ओके, ये इस मार्गोट को बहुत परेशान करता था. तो जल्दी से स्टोरी की तरफ आ जाते हैं. इससे पहले हम रे डागलास ब्रैडबरी के बारे में देख लेते हैं. हु इज़ दिस फेलो? सो रे डागलास ब्रैडबरी वॉज एन अमेरिकन फैंटेसी साइंस फिक्शन हॉरर एंड मिस्ट्री फिक्शन ऑथर. ओके, ये साइंस फिक्शन, हॉरर, मिस्ट्री फिक्शन ऑथर हैं. ओके, फैंटेसी भी ये लिखते हैं. एज वेल एज दिस पोम इज अ साइंस फिक्शन. दिस स्टोरी इज अ The story is a science fiction. एक science fiction है. So that's it. And yep, let's move to the next, like line by line explanation of the poem. Ready, ready, now soon. See this title. Ready, ready, now soon. वट दे आर ट्राइंग टू से, पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, रेडी रेडी मतलब पोइट नहीं, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं. ओके, बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो, रेडी हो जाओ जल्दी से, जल्दी ही अब होने ही वाला है. क्या होने वाला है, अब सूरज निकलने ही वाला है, अब बारिश बंद होने ही वाली है. ठीक है. डू द साइंटिस्ट रियली नो, विल इट हैपन टुडे, विल इट मतलब एक बच्चा कहता है कि यार साइंटिस्ट सच में जानते हैं क्या आज ही वो दिन है जिस दिन सूरज निकलेगा, आज ही वो दिन है जिस दिन सूरज निकलेगा. ओके, ऑब्वियसली जब सूरज निकलेगा तो बारिश तो बंद हो ही जाएगी. सन एंड रेन आर वाइस वर्सा, एक निकलेगा तो दूसरा बंद होगा, एक होगी तो दूसरा बंद हो जाएगा, इस तरीके से सब. ठीक है. तो एक बच्चा कहता है कि डू द साइंटिस्ट रियली नो, विल इट हैपन टुडे, विल इट मतलब क्या साइंटिस्ट सच में जानते क्या वो क्या आज ही बारिश बंद होगी, क्या आज ही सूरज निकलेगा. ओके, क्या आज ही सूरज निकलेगा. Look, look, see for yourself. The children pressed to each other like so many roses and so many weeds intermixed, peering out for a look at the hidden sun. क्या कहा जा रहा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं सिंस वो इतने दिनों बाद, देखो मार्गोट ने सन को देखा था पर और बच्चों ने सन को नहीं देखा था. ओके, तो मार्गोट के साथ साथ और बच्चे मार्गोट से ज़्यादा एक्साइटेड हैं. ओके, ज़्यादा दे आर मोर थ्रिल्ड. ओके, दे आर मोर एंथुजियास्टिक क्योंकि उन्होंने सन को नहीं देखा था. तो वो कहते हैं कि लोग देखो, अपने आप को देखो, मतलब बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं. ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने कभी नहीं देखी है. ओके, अब मैं कह दूं कि आज एलियन आ रहा है, आज एलियन आने वाला है अर्थ पे, तो हम लोग कितने एक्साइटेड होंगे, हम लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, देखेंगे कैसा एलियन होता है क्योंकि हमने कभी रियल में एलियन देखा नहीं है. ओके, तो इस तरीके से यही इन लोगों के साथ हो रहा है. ओके, तो बच्चे कहते हैं लुक लुक सी फॉर योरसेल्फ, एक दूसरे से बच्चे कहते हैं कि अपने आप को देखो, देखो अपने आप को. द चिल्ड्रन प्रेस टू ईच अदर लाइक सो मेनी रोजेज और सो मेनी वीड्स इंटरमिक्स पेयरिंग आउट फॉर लुक एट द हिडन सन. बच्चे एक दूसरे को बहुत धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे को बहुत धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, मतलब जैसे कि कोई नई चीज़ हम लोग देखते हैं तो हम लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं हम देखने के लिए, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है और उस भीड़ में हम लोग एक दूसरे को धक्का देते हैं, है ना, उस चीज़ को देखने के लिए. ऐसे बच्चे कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे धक्का दे रहे हैं, जैसे कि रोज़ और वीड्स मानी जो हमारे यहाँ पे वीड्स का मतलब होता है
जो कलियां या जो सीड्स होते हैं उन्हें यहाँ पे कहा गया है। ओके, रोजेज और वीड्स एक दूसरे में इंटरमिक्सड हो जाते हैं। ओके, जैसे कि रोजेज और कलियां, और या फिर वो जो दाने होते हैं लाइक मोती, ओके, जैसे वो एक दूसरे में मिक्सड होते हैं, इंटरमिक्सड हैं, ऐसे ही बच्चे एक दूसरे में इंटरमिक्सड हो रहे हैं, एक दूसरे में मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। किसे? सन को देखने के लिए, क्योंकि उन्होंने आज तक सन को नहीं देखा है। सिर्फ किसने देखा है? मार्गॉट ने देखा है। ठीक है। इट रेन्ड, इट हैड बी रेनिंग फॉर 7 years। क्या यहाँ पे कहा गया? इट रेन्ड, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years। 7 सालों तक बारिश होती रही। ओके, बच्चे कह रहे हैं कि 7 सालों तक बारिश होती रही। आज 7 साल बाद हम देखेंगे, हम लोग आज 7 साल बाद सूरज को पहली बार देखेंगे, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए। राइट, नेक्स्ट थिंग, thousands upon thousands of days compounded and filled with from one end to the other with rain। ओके, यहाँ पे क्या गया का है कि thousands upon thousands of days compounded and filled from one end to the other with rain, with the drum and gush of water, with the sweet crystal fall of showers, and the concussion of storms so heavy they were tidal waves come over the islands। मतलब thousands days compounded, मतलब इतने सालों, इतने दिनों तक बारिश होती रही, इतने दिनों तक बारिश होती रही कि पूरा जो वीनस का, पूरा वीनस नहीं है वो, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा पानी से भर चुका है। इतनी, खुद ही सोचो, यहाँ पे 7 सालों तक बारिश हो रही है, 7 सालों तक बारिश हो रही है। हमारे यहाँ पर अगर 2-4 दिन भी 3 days, लेट्स टेक 3 days, अगर 3 दिन भी लगा सुबह शाम बारिश हो तो क्या हो जाता है? इट्स लुक लाइक फ्लड इज गोइंग टू कम। राइट, ऐसा ही हो जाता है, नहीं हो जाता है? पर उधर सोचो, जस्ट यू कुड पॉन्डर, दो इट इज़ एन इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट, इट इज़ अ साइंस फिक्शन, बट जस्ट थिंक इन रियलिटी, अगर 7 सालों तक कहीं बारिश हो तो वहाँ तो सुनामी आ जाएगी, सुनामी से भी बड़ी सुनामी आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे 7 सालों तक बारिश होती रही, और डेज के ऊपर डेज, कंपाउंडेड मीन्स मतलब लाइक एक हर दिन पानी बढ़ता रहा, है ना, बारिश की वजह से हर दिन पानी बढ़ता रहा पूरे वीनस पे, एक एंड से दूसरे एंड तक हर तरफ बहुत सारा पानी था। ओके, एंड द ड्रम एंड गश ऑफ वाटर विथ स्वीट क्रिस्टल फॉल्स ऑफ शार एंड द कंकशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड ड्रम एंड गश। ये ड्रम एंड गश का मीनिंग यहाँ पे है जो इसकी आवाज़ होती है, इसकी जो बारिश की बूंदों की आवाज़ होती है, जो पानी की आवाज़ पे यहाँ पे कहा गया है ड्रम एंड गश। ओके, जैसे कि पानी एक चीज़ से टकराता है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ को हम कहते हैं ड्रम एंड गश, मीन्स पानी का एक दूसरी तरफ टकराव। ओके, with the sweet crystals falls of shower and the concussion of stones so heavy they were tidal waves come over the islands। मतलब इतनी बारिश हो रही थी कि आइसलैंड तक जो टाइडल वेव्स आ गए। टाइडल वेव्स मतलब पानी की जो वेव्स हैं वो आ गए। टाइडल मीन्स टाइड्स जो होती हैं वो पानी को ही कहा जाता है इन जियोग्राफिकल लैंग्वेजेस। ओके, सो A thousand forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again। क्या कहा गया यहाँ पे, सुनो, thousands times जो है फॉरेस्ट, वो पानी के, क्योंकि पानी में बहुत प्रेशर होता है, तो पानी जो 1000 टाइम्स जो फॉरेस्ट है वो पानी के साथ टूट गए, मतलब सब बर्बाद हो गए, और दोबारा उगे, वो बिखर के दोबारा उगे और दोबारा वो टूट गए। मतलब जैसे ही फॉरेस्ट उगता है, पानी का जो प्रेशर होता है वो फॉरेस्ट को पूरा तोड़ देता है, दोबारा फॉरेस्ट उगता है, दोबारा ट्रीज उगते हैं, वो दोबारा पानी, जब टाइडल वेव्स आती है तो दोबारा उस फॉरेस्ट को गिरा देती है। मतलब फॉरेस्ट भी नहीं हो पा रहा था, वहाँ वेजिटेशन नहीं हो पा रहा था। ओके, एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लैनेट वीनस। और यही कैसे ज़िंदगी चलती थी वीनस पर, ये लाइफ थी वीनस पर। ओके, and this was the school room of the children of the rocket man and women who had come to a raining world to set up civilization and live out their lives। मतलब और उनके चिल्ड्रन, किनके चिल्ड्रन,
जो रॉकेट मैन एंड वुमेन है, मतलब जो अर्थ से मैन, जो अर्थ से पीपल आए हैं, जो अर्थ से पेरेंट्स आए हैं वीनस पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अर्थ से वीनस तक पेरेंट्स आए हैं। ओके, तो रॉकेट मैन एंड वुमेन का मतलब है जो अर्थ से रॉकेट पर बैठकर पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए और यहाँ पर वीनस पर सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, इट्स स्टॉपिंग, यस, मार्गरेट स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम, फ्रॉम दीज चिल्ड्रन हु कुड एवर रिमेंबर अ टाइम। ओके, एक बच्चा कहता है कि बारिश रुक रही है। हाँ, मतलब बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं ना, तो कह रहे हैं बारिश रुक रही है। हाँ, रुक रही है बारिश। पर जो मार्गरेट थी वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी, क्योंकि कोई उससे बात नहीं करता था, तो इसलिए सब उसे बहुत स्कोल्ड करते थे, उसे परेशान करते थे। ओके, दैट्स वाई शी डिड नॉट यूज टू अटर सो मच। ओके, और इसलिए वो अलग खड़ी थी और बच्चों से। ओके, who could ever remember a time when there wasn't rain? They were all 9 years old. सारे बच्चे कितने साल के थे? 9 साल के थे सारे बच्चे। ओके, इसका मतलब क्या? 9 साल के बच्चे थे। इसका मतलब जब वो पहली बार अर्थ से वीनस पर आए थे तो कितने साल पे आए थे? 2 साल। दिस कैन बी द क्वेश्चन। वो 2 साल के थे जब वो अर्थ से वीनस पर आए थे। सारे बच्चे एक ही एज के हैं सारे बच्चे। ओके, नाउ Margot took from these children who could ever remember a time when there wasn't rain. They were 9 years old. वो 9 साल के थे। And if they had been a day 7 years ago when the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world, they could not। मतलब और वहाँ पर एक दिन 7 साल पहले एक दिन सन निकला था। ठीक है, सन निकला था और अपना चेहरा दिखाया था वीनस पर। ओके, स्टन्ड वर्ल्ड को, स्टन्ड का मीनिंग यहाँ पे होता है बहुत स्टन्ड हो जाना, राइट? मतलब स्टन्ड वर्ल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा चौंका हुआ वर्ल्ड। ओके, बहुत ज़्यादा एकदम रिजिड कह सकते हैं, बहुत रिजिड वर्ल्ड को। दे कुड नॉट रिकॉल, पर उन्हें याद नहीं था। बच्चों को याद क्यों नहीं था? क्योंकि वो सिर्फ 2 साल के थे जब सन निकला था वीनस पर, राइट? Sometimes at night she heard them stare and remember, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with। क्या कहा गया यहाँ पे? ओके, और कभी कभी तो रात में उन लोगों को मतलब उन्हें सोचते हैं वो लोग और अपने सपनों में देखते हैं कि जो सन है वो शायद एक गोल्ड या येलो क्रेयॉन की तरह है। सन कैसा है? गोल्ड या येलो? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चंस। कैसा है? गोल्ड और येलो क्रेयॉन्स की तरह है, और एक बड़े से सिक्के की तरह है जिससे हम पूरे संसार को मतलब खरीद सकते हैं। ओके, जिससे पूरा संसार खरीदा जा सकता है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल्स कैसे बताए गए हैं कि वो कैसा है? गोल्ड या येलो क्रेयॉन की तरह है, एक बड़े से सिक्के की तरह है जिससे हम पूरा संसार खरीद सकते हैं। सन को बताया गया है ये। ओके, शी न्यू दे thought they remembered a warmness like a blushing in the face। मतलब उन्हें क्या याद है? उन्हें उस सन की मतलब जो गर्मी होती है, सन की वार्मनेस होती है, वो याद है। जब उनके फेस पे, जब वो 2 साल के थे तब उनके जब फेस पे वो जो वार्मनेस पड़ती थी, उनकी बॉडी पे जो पड़ती थी, उनकी आर्म्स लेग्स में जो वो वार्मनेस पड़ती थी, एंड द ट्रम्बलिंग हैंड्स, और जो कांपते हुए हाथों पे पड़ती थी, वो उन्हें याद थी बस। ओके, बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टैटरिंग ड्रम एंड एडलेस। ओके, बट दे, यहाँ पे ये सपना देख रहे हैं, ये लोग सपना देख रहे हैं, बट उनका सपना टूट जाता है। वो खड़े हो जाते हैं, मतलब उठ जाते हैं, और उन्हें क्या सुनाई देता है? रेन की आवाज़ सुनाई देती है। ओके, वो सोच रहे होते हैं
tattering drum, the endless shaking down of clear bead necklace upon the roof, the walk, the garden, the forest, and their dreams were gone. मतलब सब कुछ नष्ट हो गया था. Gardens, dreams, ओके सब कुछ बारिश ने बेकार कर दिया था. ओके सारे सपने लोग बच्चों के बेकार कर दिए थे. All day yesterday they had read in the class about the sun. ओके उन्होंने कल क्लास में सन के बारे में पढ़ा था. कल की क्लास में उन लोगों ने किसके सन के बारे में पढ़ा था. ओके वो जानते थे कि सन कैसा लगता है. सन एक नींबू की तरह है. ओके सन एक लेमन की तरह है. लाइक अ लेमन इट वॉज एंड हाउ हॉट और कितना गर्म है. एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज एंड एसेज और पोम्स अबाउट इट. आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ये मार्गोट की पोम है. आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour. ये किसने लिखा था या मार्गोट ने लिखा था. क्या हुआ था, जो टीचर था उसने कहा था कि सब सन के ऊपर एक एक स्टोरी और पोम्स लिखेंगे. तो बच्चों ने एक एक स्टोरी और पोम्स लिखी है. मार्गोट की भी स्टोरी एक पोम है. स्टोरी नहीं, मार्गोट की भी एक पोम है. उस पोम का नाम है आई थिंक द सन इज़ अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour. मतलब मुझे लगता है कि सन एक फ्लावर है जो सिर्फ 1 घंटे के लिए खिलता है. राइट, दैट वॉज मार्गोट्स पोम. किसकी? मार्गोट की पोम थी. वो किसकी? मार्गोट की पोम थी. Read in a quiet voice in the still classroom while the rain was falling outside. मतलब जब बाहर रेन हो रही थी तो वो हल्की आवाज़ में, क्योंकि वो थोड़ी सी डरी हुई सी रहती थी. वो लड़की जो थी थोड़ी सी डरी हुई सी रहती थी, थोड़ी सी मतलब कम बोलती थी, इसलिए वो हल्की आवाज़ में सबको सुनाती है, पूरी क्लास को सुनाती है अपनी स्टोरी. ओके यू डिडंट राइट दैट प्रोटेस्ट वन ऑफ द बॉयज़. एक बच्चे ने कहा, एक लड़का कहता है मार्गोट से कि नहीं, ये तुमने नहीं लिखी है. मतलब बहुत चिढ़कर कहता है कि ये तुम्हारी पोम नहीं है, ये तुमने नहीं लिखी है. आई डिड सेड मार्गोट, आई डिड. और मार्गोट बहुत ही मतलब शांत वॉइस में कहती कि मैंने ही लिखी है, ये मेरी ही पोम है. ओके मैंने ही लिखी है. मार्गोट कहती है ये मेरी ही पोम है. ओके विलियम सेड द टीचर. टीचर चिल्लाता है विलियम को. विलियम मतलब जोर से कहती विलियम. राइट, बट दैट वॉज यस्टरडे. नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग एंड द चिल्ड्रन वॉज क्रस्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज. पर ये कल की बात थी. ओके ये कल की बात थी. अब रेन जो है वो स्लैकनिंग, स्लैकनिंग का मतलब होता है कम होना. ओके रिड्यूस हो रही थी. जो ये रेन थी वो रिड्यूस हो रही थी. और जो चिल्ड्रन थे दे वर क्रस्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज़. और वो विंडोज़ से देख रहे थे बारिश को कम होते हुए. ओके एक दूसरे को धक्का देते हुए विंडोज़ से देख रहे थे. ओके ऑब्वियसली वो लोग बाहर जा नहीं सकते. ओके तो वो लोग विंडोज़ से देख रहे थे एक दूसरे को धक्का देते हुए. वेयर्स द टीचर, शील बैक. मतलब सब बोलते हैं टीचर कहाँ हैं. तभी एक बच्चा कहता है वो जल्दी आएंगी, वो आ रही होंगी. ओके वो बच्चे कहते हैं वेयर इज़ द टीचर, शी विल बी बैक. मतलब वो आने ही वाली हैं. शी हैड बेटर हरी, वील मिस इट. मतलब बच्चे कहते हैं कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए वरना हम सन को खो देंगे. मतलब वरना सन चला जाएगा. ऑब्वियसली जब इतने सालों बाद आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे उस चीज़ के लिए, है ना. आप ये चाहेंगे कि वो और देर रुक सके. राइट, दे टर्न्ड ऑन देमसेल्फ. Okay, they turned on themselves like a feverish wheel, all tumbling spokes. मतलब वो एक दूसरे पे टर्न हो जाते हैं, मतलब देखते हैं पीछे. फेवरिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेताब होकर. ओके फेवरिश मीन्स बहुत बेताबी से वो लोग देखते हैं. ऑल टम्बलिंग स्पोक्स. मार्गोट स्टूड अलोन. पर मार्गोट अकेली खड़ी थी. ओके मार्गोट अकेली खड़ी थी. शी वॉज अ वेरी फ्रेल गर्ल who looked as if she had been lost in the rain for years and the rain had washed out the blue from her eyes and the red from her mouth. और जो मार्गोट है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लगती है. ऐसा लगता है जैसे कि रेन की वजह से उसको जितना भी ग्लो था चेहरे पे वो सब उड़ चुका है और बिल्कुल फेड गर्ल हो गई है. वो एकदम वाइट हो गई है. ओके वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट गर्ल हो गई है. ओके लाइक दिस, जैसे कि मैंने आपको पोर्ट्रेट दिखाया था. दिस गर्ल, यू कुड सी हर फेस. ओके
इस तरीके से उसका फेस हो गया है, बहुत ज़्यादा लाइक एग्जॉस्टेड सी लगती है। ओके, क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ रेन। ओके, जब आप एक ही एटमॉस्फेयर में सालों तक रह रहे हैं तो आपकी कैसी कंडीशन होगी, जस्ट थिंक। ओके, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसके जो लाइक उस रेन ने उसके मतलब सारे कलर्स छीन लिए हों, उसका सारा ग्लो छीन लिया हो। ओके, ब्लू फ्रॉम हर आइज एंड रेड फ्रॉम हर माउथ एंड येलो फ्रॉम हर हेयर। ओके, ये सब कलर्स बताए गए हैं मार्गोट के बारे में कि मार्गोट से ये कलर्स छीन लिए गए हैं। ओके, सी ब्लू ब्लू फ्रॉम हर आइज एंड रेड फ्रॉम हर माउथ। ओके, उसके आंखों से नीला रंग छीन लिया गया है, उसकी मुंह से लाल रंग छीन लिया गया है। मतलब उसके होंठ और उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल बहुत एग्जॉस्टेड सी हो गई हैं। एंड एंड द येलो फ्रॉम एंड द येलो फ्रॉम हर हेयर, और उसके बालों से येलो कलर छीन लिया गया है। ओके, आंखों से ब्लू कलर छीन लिया गया है, मुंह से रेड कलर छीन लिया गया है और बालों से येलो कलर छीन लिया गया है। मतलब उसकी जो पूरा बॉडी अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा फेड हो गई है बारिश की वजह से। ओके, जब आप खुद देख लीजिए रस्टिंग हो जाती है आयरन में, राइट? बारिश में अगर बहुत दिनों तक पड़ी रहे चीज़ तो रस्टिंग हो जाती है, उसका कलर छीन लिया जाता है आयरन का, राइट? तो इसी तरीके से इस गर्ल का भी कलर छीन लिया गया है रेन ने। ओके, शी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम वाइटेंड अवे एंड इफ शी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी अ गोस्ट। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो एक ऐसा पुराना सा फोटोग्राफ लग रही थी, ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों का कोई फोटोग्राफ पड़ा हो। ओके, ऐसा लग रहा था जैसे एल्बम में से कोई बहुत ज़्यादा धुंधला और मिट्टी का, ओके, मिट्टी में सब बिगड़ा हुआ, मिट्टी से सब बिगड़ा हुआ फोटोग्राफ हो मार्गोटी का। ओके, और जब वो बोलती थी ना तो उसकी वॉइस ऐसी लगती जैसे कोई भूत बोल रहा हो ऐसा लगता था जैसे कोई गोस्ट बोल रहा हो। नाउ शी स्टूड सेपरेट स्टेयरिंग एट द रेन एंड द लाउड वर्ल्ड बियॉन्ड द ह्यूज ग्लास। मतलब ग्लास से, विंडो से उस तरफ देख रही थी, रेन की तरफ। ओके, रेन की तरफ मार्गोट देख रही थी विंडो से उस तरफ। ओके, अकेली खड़ी होकर। अब दोबारा ये जो विलियम है ना, ये विलियम समझ लो कि मार्गोट का दुश्मन है, सबसे बड़ा एनिमी है विलियम। ओके, हमेशा प्रोटेस्ट करता है उसे। दोबारा विलियम कहता है व्हाट आर यू लुकिंग एट, सेड विलियम। मार्गोट सेड नथिंग। मतलब विलियम कहता है क्या देख रही हो बाहर, बाहर क्या है ऐसा जो देख रही हो? मार्गोट कहती कुछ नहीं। ओके, स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। ही गेव हर अ शो बट शी डिड नॉट मूव। मतलब मार्गोट वो जो लड़का है विलियम, वो कहता है, पहले तो पूछता है, क्वेश्चन करता है कि क्या देख रही हो तुम? ओके, तुम देख क्या रही हो? मार्गोट कहती है कुछ नहीं। अब फिर वो कहता है कि जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाया करे ना तो तुम बोला करो, जब बोलने के लिए कहा जाया करे तब बोला करो। ओके, स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू का मतलब यही है कि जब तुम्हें बोलने के लिए कहा जाए तो तुम तब बोला करो। ओके, ही गेव हर अ शो। मतलब मार्गोट को वो एक धक्का सा दे देता है, एक धक्का दे देता है। बट शी डिड नॉट मूव, रेदर शी लेट हरसेल्फ बी मूव्ड ओनली बाय हिम एंड नथिंग एल्स। ओके, और वो मूव नहीं होती है, इधर से उधर मूव नहीं करती है। दे एडेड अवे फ्रॉम हर, दे वुड नॉट लुक एट हर। शी फेल्ट them go away, and this was because she would play no games with them in the echoing tunnels of the underground city. Okay, यहाँ पे क्या क्या है? They edged away from her. Okay, they would not look at her. मतलब कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता है, मार्गोट की तरफ। She felt them go away. वो चाहती है कि ये लोग मतलब उससे दूर चले जाएं क्योंकि सब उसे बहुत परेशान करते थे। एंड दिस वॉज बिकॉज शी वुड प्ले नो गेम्स विद दैम। और यही रीज़न था क्योंकि सब उसे बहुत परेशान करते थे, तो यही रीज़न था कि वो किसी के साथ नहीं खेलना चाहती थी। ओके, एंड दिस वॉज बिकॉज शी नो गेम विद दैम इन द इकोइंग टनल्स ऑफ द अंडरग्राउंड सिटी। मतलब इकोइंग टनल, ऐसी टनल जहाँ पे वॉइस इको करती हो। इको मतलब दोबारा लौट कर आती हो, रिवर्बरेशन।
ओके, रिवर्बरेट करती हो टनल से, ओके, अंडरग्राउंड सिटी की, ओके। वहाँ पे सिटीज़ जो थी वो अंडरग्राउंड हुआ करते थे, सिंस वहाँ पे हर समय पानी रहता था, तो इसलिए सिटीज़ को अंडरग्राउंड डिग करवा दिया था। इफ़, ओके, सो इट, okay, if they tagged her and ran and stood blinking out after them and did not follow, मतलब ये गेम की बात कर रहे हैं, पकड़म पकड़ाई जो गेम होता है वो ही, इसी गेम की बात यहाँ पे की गई है। ओके, आंख बंद करके जिस कोई छू लेते थे तो वो दूसरा इंसान उसे छूता था। ओके, व्हेन द क्लास sang songs about happiness and life and games her lips barely moved, मतलब ये मार्गोट की बात की गई है। जब भी क्लास में कोई ऐसा सॉन्ग गाया जाता था हैप्पीनेस के बारे में, लाइफ की, गेम्स के बारे में, तो मार्गोट के जो लिप्स थे वो बहुत मुश्किल से हिलते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेल गर्ल थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ऐसी गर्ल थी जिसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था। ओके, ओनली व्हेन दे sang about the sun and the summer did her lips move as she watched the drenched window, मतलब और जब वो सन के बारे में बात करते थे, मतलब जब वो लोग प्रेयर करते थे या गाते थे गाना, तब उसके लिप्स नहीं हिलते थे, पर जब वो सन के बारे में बात, मतलब सन के बारे में बात करते थे या सन के बारे में गाना गाते थे तो उसके लिप्स हिलते थे। ओके, उसके लिप्स टिकते थे, हिलते थे, और वो ड्रेंच्ड विंडोज़ को देखती थी। ड्रेंच्ड विंडोज़ मतलब जिसमें से पानी निचुड़ रहा हो, ऐसी विंडोज़ जिसमें बहुत सारा पानी हो। ओके, बिल्कुल ड्रेंच्ड हो, पानी जिसमें निचुड़ रहा हो, उन्हें हम कहते हैं ड्रेंच्ड विंडोज़। ओके, and then of course the biggest crime of what it is, just wait, crime of all was that she had come here only 5 years ago from earth, और सिर्फ उसने क्या क्राइम किया था, क्राइम का मतलब यहाँ पे जिससे बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। ओके, ऑब्वियसली तो एक वो क्राइम ही हुआ, क्योंकि बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे, तो वो सोचते थे कि मैंने सिर्फ यही तो क्राइम किया कि मैं अर्थ से सिर्फ 5 साल के लिए यहाँ आई हूँ। ओके, सिर्फ 5 साल पहले ही मैं अर्थ से यहाँ पे आई हूँ, यही तो मेरा क्राइम है, तभी तो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मतलब वो कह रही है। ओके, लोग उसे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो अर्थ से यहाँ वीनस पे आई है दोबारा। ओके, एंड दिस इज द रीजन वाई पीपल डू नॉट लव हर। ओके, एंड शी रिमेंबर द सन एंड द वे द सन वॉज एंड द स्काई वॉज व्हेन शी वॉज 4 इन ओहियो। ओहियो एक जगह है, अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। और उसका क्राइम क्या था कि उसे सन के बारे में पता है, उसे आसमान के बारे में पता है। जब वो 4 साल की थी ओहियो में, जब वो ओहियो में 4 साल की थी, तब उसने देखा था सन के बारे में, सन को देखा था उसने और स्काई को देखा था, और यही उसका क्राइम था। क्राइम मतलब जिससे बच्चे उसे बहुत चिढ़ते थे कि उसने सन को देखा है और हम लोगों ने सन को नहीं देखा है। ये होता है ना कि बच्चे चिढ़ते हैं कि उसने सन को देखा है और हमने सन को नहीं देखा है, तो वो हमेशा से मार्गोट से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उन लोगों ने सन को कभी नहीं देखा था पर मार्गोट ने देखा था। ओके, एंड दे हैड बीन ऑन वीनस ऑल देयर लाइव्स, और जो बच्चे हैं वो पूरी ज़िंदगी वीनस में ही रहे, मतलब छोटे से लेके अब तक वो पूरी ज़िंदगी वीनस पर ही उन्होंने बिताई। पर मार्गोट ने कुछ 4 साल अपने अर्थ पर भी बिताए। कौन सी जगह पे? ओहियो नाम की जगह पे। ओहियो एक स्टेट है अर्थ पर। ओके, वहाँ पर आई थिंक ये चाइना या जापान, शायद जापान या चाइना में से कहीं पर है। ओके, आई एम नॉट प्रीटी रिमेंबर। ओके, नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ प्लेस ओहियो, ओके, वेयर शी यूज्ड टू लिव। ओके, and they had been only 2 years old when last the sun came out, and had long since forgotten the color and heat of it and the way it really was। मतलब, और वो सब लोग कितने 2 साल के थे। ओके, वो सब कितने साल के थे? 2 साल के थे। बाकी बच्चे 2 साल के थे, पर मार्गोट जो थी
ओके, मार्गोट कितने साल की थी? 5 साल की थी। ओके, मार्गोट 5 साल की थी, इसलिए उसे सन के बारे में पता है, राइट। पर वो बच्चे जो थे, बाकी के जो बच्चे थे, वो सिर्फ 2 साल के थे जब वो आए थे अर्थ से वीनस में। तो उन्हें सन के बारे में सब कुछ भूल गए थे, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया था। इतने छोटे बच्चे क्या याद रखें, राइट। इतने छोटे बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है। तो वो सिर्फ 2 साल के बच्चे थे जब वो अर्थ से आए थे वीनस पे। तो उन्हें ना सन पता है, ना अर्थ पता है, ना सन का कलर पता है, कुछ सब कुछ भूल गए थे। इवन उनकी हीट तक को वो नहीं पहचानते थे। ओके, नाउ बट मार्गोट रिमेंबर्ड, पर मार्गोट को पता था क्या होता है सन, कैसी इसकी हीट होती है, ओके, कैसा सब कुछ होता है। मार्गोट को उसके बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि मार्गोट जब 5 साल की थी तब वो ओहियो या ओहायो, कुछ भी कह सकते हैं, ओहायो से जब वो आई थी वीनस पे, तब वो कितने 5 साल की थी। तो इसलिए उसे अर्थ के बारे में और सन के बारे में, दोनों के बारे में पता है। ओके, तो मार्गोट क्या कहती है सन के बारे में? इट्स लाइक अ पेनी, शी शेड वंस आईज क्लोज, वो आंख बंद करके जस्ट पॉन्डर अपॉन द सन, ओके, अबाउट द सन, एंड सेज दैट इट इज़ लाइक अ पेनी, ये एक सिक्के के तरह होता है। सन किसकी तरह होता है? एक सिक्के की तरह होता है। मार्गोट अपनी आंखें बंद करके क्या कहती है कि सन होता है वो एक सिक्के की तरह होता है। नो इट्स नॉट, द चिल्ड्रन क्राइड, इट्स लाइक अ फायर शी सेड इन द स्टोव। मतलब जब वो मार्गोट कहती है कि ये एक सिक्के की तरह होता है, तो बाकी के बच्चे फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं उसे, और कहते हैं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, ये सिक्के की तरह नहीं होता है। ओके, बच्चे चिल्लाते हैं। वो चिढ़ते थे ना मार्गोट से, क्योंकि मार्गोट को पता है कि सन कैसा है और बच्चों को नहीं पता है। मार्गोट 4 साल की थी और वो बच्चे 2 साल के थे जब वो अर्थ से वीनस पर आए थे। तो इसलिए वो लोग चिढ़ते हैं कि और फिर मार्गोट के मम्मी पापा भी उसे लेने आ रहे थे दोबारा कुछ सालों बाद, तो इसलिए और वो चिढ़ गए थे कि वो दोबारा अर्थ पे रहने लगेगी और हम लोग अभी भी वीनस पर ही हैं। तो जस्ट इट इज़ जेलेसी, इट इज़ जस्ट एनवीनेस ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, ये सिर्फ एक एनवीनेस थी, एनवीनेस ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, ड्यू टू दिस इज द रीज़न वाई चिल्ड्रन यूज टू they used to always furious with मार्गोट। ओके, तो वो जब कहती है कि ये एक पैनी की तरह होता है, तो बच्चे चिल्लाते हैं बहुत जोर से, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो फिर से वो कहती है कि ये फायर की तरह होता है, ये आग की तरह होता है, स्टोव में जो जैसे आग होती है ऐसा ही ये सन होता है। ओके, अब बच्चे फिर से क्या कहते हैं? You're lying. You don't remember. I cried. You don't remember. Cried the children. बच्चे चिल्लाते हैं कि तुम्हें नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो कैसा होता है, तुम झूठ बोल रही हो। ओके, बट शी रिमेंबर्ड, पर उसे पता था, एंड स्टूड क्वाइटली अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड वॉच्ड द पैटर्निंग विंडोज। ओके, और वो जो मार्गोट है, मतलब बेचारी वो कर भी कह सकती है, मतलब जब बच्चे नहीं मान रहे हैं तो वो दूर खड़ी हो जाती है। ओके, पर उसे पता था कि कैसा दिखता है, और वो देखने लगती है पैटर्निंग विंडोज़ को। पैटर्निंग का मतलब होता है जिसमें पैटर्न्स बने हो। ओके, just wait, I am highlighting those points which could be crucial to you. Okay, so that patterning का मीनिंग होता है जिसमें पैटर्न्स, कुछ सर्टेन पैटर्न्स बने होते हैं। ओके, पैटर्निंग विंडोज। एंड once a month ago she had refused to shower in the school shower rooms, had clutches her hands to her ears and over her hats, screaming the water mustn't touch her head। मतलब कि इतने बोर हो गए थे वो, मार्गोट इतनी बोर हो गई थी पानी में रह रह के कि वो नहाना भी नहीं चाहती थी। वो पानी से बिल्कुल, उसे हाइड्रोफोबिया हो गया था, समझ लो, हाइड्रोफोबिया हो गया था उसे। ओके, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगने लगा था अब उसे, ठीक है, कि वो अपने हाथ तक नहीं अपना सिर तक नहीं धोना चाहती थी। स्क्रीमिंग द वाटर मस्टंट टच हर हेड, और चिल्लाती थी कहीं उसका सिर नहीं, मतलब उस बॉटल जो है वो उसका सिर नहीं छू ले।
ओके क्योंकि पानी में रह रहकर वो बहुत बोर हो गई थी. सो आफ्टर दैट डिमली शी सेंस्ड इट शी वॉज डिफरेंट एंड दे न्यू her difference and kept away. There was talk that her father and mother were talking her back to earth next year. और वो मतलब वो सोच रही थी, मतलब उसने और उसके जो पेरेंट्स थे वो अगली साल उसे ले जाने आ रहे थे. नेक्स्ट ईयर मार्गोट को धरती पर ले जाने आ रहे थे और इसी वजह से बच्चे उससे चिढ़ते थे. ओके सीम्ड वाइटल टू हर दैट दे डू सो थ्रो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू हर फैमिली. पर इसके लिए उसकी फैमिली को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क राइट, कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जस्ट आप कुछ ही रुपए में ले आएँ. बहुत सारे रुपए लगते हैं एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाने के लिए और लाने के लिए. ठीक है, तो उन्हें भी बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत थी अपनी बच्ची को दोबारा से अर्थ पर बुलाने के लिए. ओके और शायद यही ठीक रहेगा उसके लिए मार्गोट के लिए. एंड सो द चिल्ड्रन हेटेड हर फॉर ऑल दीज रीजन्स ऑफ बिग एंड लिटिल कॉन्सिक्वेंसेज. और मैंने क्या कहा था, इसी की वजह से बच्चे इससे चिढ़ते थे. क्यों चिढ़ते थे? कि उसे सन के बारे में पता है, सन कैसा दिखता है, वो अर्थ पर रहकर आई है और वो अर्थ पर रहेगी भी. अब वो अगली साल अर्थ पर रहेगी. यही 3 रीजन्स थे बच्चों के हेट्रेट के टुवर्ड्स मार्गोट. ठीक है, इन्हीं 3 मतलब रीजन्स की वजह से बच्चे जो है मार्गोट से चिढ़ते थे बहुत. ओके द हेटेड हर पेल स्नो फेस हर the reason they hated her pale snow face, her beating silence, her thickness and her possible future. मतलब वो उसके लाइक एग्जॉस्टेड फेस से डरते थे. पेल फेस क्यों था उसका, पीला फेस, वाइट पीला फेस क्यों था? क्योंकि वो पानी में रह रहे. जस्ट सपोज आप जब पानी में नहाते हैं, ज़्यादा देर तक नहाते हैं, तो आपके जो हैंड्स होते हैं और जो बॉडी होती है उसकी स्किन कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है और साथ ही साथ रिंकल्ड हो जाती है. राइट, यही सेम इसकी कंडीशन थी मार्गोट की. ठीक है, तो उसकी जो पेल फेस था, स्नो फेस, हर वेटिंग साइलेंस, हर थिकनेस एंड हर पॉसिबल फ्यूचर, वो सब वेट कर रहा था. ओके और नेक्स्ट स्टैंजा इज Get away! The boy gave her another push. What are you waiting for? मतलब बच्चा चिल्लाता है कि जाओ ना. मतलब क्योंकि वो अर्थ पर जा रही थी ना अगले साल, तो वो बच्चा चिल्लाता है कि जाओ ना अब अर्थ पर. मतलब धक्का दे देता है उसे गुस्से से. आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो? जाओ अर्थ पर. आप किस चीज़ का इंतज़ार है? जाओ अर्थ पर. Then for the first time she turned and looked at him. And what she was waiting for was in her eyes. And for the first time she turned and looked at him. और पहली बार मार्गोट ने अपनी आँखें ऊपर की और उस बच्चे को देखा. मतलब वो इतनी ज़्यादा डरती थी कि वो कभी भी किसी बच्चे को नहीं देखती थी आँख उठाकर. राइट, तो उसने पहली बार एक बच्चे को देखा आँख उठाकर. Well, don't wait around here, cried the boy savagely. Okay, मतलब जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, सेवेजली मतलब वैसे तो बहुत ज़्यादा जैसे जंगली लोग होते हैं उसी तरीके से उस बॉय ने भी कहा. You won't see nothing, her lips moved. Okay, you won't see nothing, her lips moved. Nothing, he cried. It was all a joke, wasn't it? Okay. He turned to the other children. Nothing's happening today, is it? मतलब क्योंकि आज सन निकलने वाला था ना, आज सन निकलने वाला था. It was all joke. मतलब बच्चे कहते हैं कि कुछ नहीं होगा आज, सन पर कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ हम मजाक कर रहे थे, सिर्फ टीचर आज मजाक कर रही थी. Okay, wasn't it?
क्या आज कोई सन नहीं निकलने वाला। ही टर्न टू द एंड अदर चिल्ड्रन, नथिंग हैपनिंग टुडे इज इट। मतलब और जो वो बच्चा होता है जिसने मार्गोट को धक्का दिया होता है, वो और बच्चों की तरफ मुड़ता है और उन बच्चों से कहता है कि आज कुछ निकलने वाला है, आज सन निकलेगा। मतलब बहुत ज़्यादा कहता है। तो और बच्चे भी मना करते हैं, नहीं आज सन नहीं निकलेगा, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। मार्गोट से सब बच्चे कहते हैं, राइट। सब बच्चे कहते हैं आज कुछ नहीं होगा, सब पागल बना रहे हैं तुम्हें, आज सनफन कुछ नहीं निकलेगा। ओके, दे ऑल ब्लिंक्ड एट हिम एंड देन अंडरस्टैंडिंग लाफ्ड एंड शोक देयर हेड्स। और सब बच्चे एक दूसरे की तरफ आंख मारते हैं इस तरीके से। मतलब जब कोई मजाक कर रहा होता है ना, या कोई हमें पागल बना रहा होता है, तो वो ऐसा करता है ना, आंख एकदम ऐसे करता है, आंख एक ब्लिंक करता है। तो ऐसे ये बच्चे भी कर रहे थे एक दूसरे की तरफ। ये लोग मार्गोट को पागल बना रहे थे कि आज कुछ नहीं होगा, आज सन नहीं निकलेगा, जबकि रियलिटी ये है कि आज सन निकलेगा। पर मार्गोट को ये लोग पागल बना रहे थे। ओके, तो एक दूसरे की तरफ सिर को ऐसे हिलाते हैं, राइट, सिर को शूक करते हैं और आंख मारते हैं कि आज कुछ नहीं होगा, नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, आज कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पागल बनाया जा रहा है मार्गोट, आज कोई सनफन नहीं निकलेगा। ओ बट मार्गोट विस्पर्ड हर आईज हेल्पलेस, बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट, दिस इज द डे। पर जो मार्गोट है वो क्या कहती है, जो मार्गोट है वो विस्पर्ड मतलब बहुत हल्के बोलती है कि यही वो दिन है। ओके, और हर आइज हेल्पलेस मतलब उसकी आंखों में कोई हेल्प नहीं होती, ऑब्वियसली कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, सब उससे प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो जो मार्गोट है बिल्कुल लोनली होती है और वो हल्के से बोलती है कि पर यही दिन था जब साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था। जस्ट वेट, जब साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था, दे न्यू द सन, उन्होंने कहा था कि आज का ही दिन है जब सन निकलेगा। ओके, ऑल अ जोक सेड द बॉय एंड सीज्ड हर रफली। मतलब सब, वो लड़का कहता है सब जोक है, ये जोक किया है साइंटिस्ट ने। ओके, एक जोक किया है साइंटिस्ट ने, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मतलब उससे बहुत कसकर पकड़ लेता है। सीज्ड हर रफली मतलब बहुत, मार्गोट को वो लड़का बहुत कसकर पकड़ लेता है। हे एवरीवन, लेट्स पुट हर इन अ क्लोजेट बिफोर द टीचर कम। अब वो क्या करते हैं सब लोग, क्या मतलब वो क्या कहता है वो लड़का कहता है सुनो सब लोग, इससे क्लोजेट में बंद कर दो, इससे पहले कि टीचर आए और देखें। मार्गोट को जल्दी से क्लोजेट में बंद कर दो। ओके, नो सेड मार्गोट फॉलिंग बैक। मतलब मार्गोट बहुत रोकर कहती कि नहीं ऐसा मत करो, और उसे गिरा देते हैं वो बच्चे क्लोजेट में, उसे मार्गोट को गिरा देते हैं पीछे की तरफ, क्लोजेट की तरफ उसे धक्का दे देते हैं। कितना बुरा कर रहे हैं, राइट। दे सर्च्ड about her, caught her up and bore her, protesting and then pleading and then crying back into a tunnel, a room, a closet where they slammed and locked the door. मतलब मार्गोट बहुत रोती है, हाथ जोड़ती है, बहुत प्रार्थना करती है कि उसे बंद मत करो। पर जो बच्चे होते हैं वो उसे क्लोजेट में बंद कर देते हैं। ओके, वो उसे क्लोजेट में बंद कर देते हैं और दरवाज़ा को लॉक कर देते हैं। They stood looking at the door and saw it tremble from her beating and throwing herself against it. They heard her muffled cry. Okay, where we were, they stood there at the door and saw it tremble from the beating and throwing herself against it. और उसे वो फेंक देते हैं वहाँ पर। They heard her muffled, okay, they heard her muffled cry. मतलब सब उसे सप्रेस्ड कर देते हैं। मफल्ड का मीनिंग होता है सप्रेस्ड कर देते हैं, डिप्रेस्ड कर देते हैं उसे। सप्रेस मतलब दबा देते हैं उसे। ओके, उसकी जो आवाज़ को दबा देते हैं, उसकी आवाज़ को सब दबा देते हैं। मफल्ड का मीनिंग होता है उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। आवाज़ को कैसे दबा देते हैं? दरवाज़ा बंद करके। ओके, then smiling they turned and went out and back down the tunnel just as the teacher arrived. और वो सब हंसकर नीचे टनल से बाहर निकल आते हैं इससे पहले कि टीचर आए। उससे पहले ही वो लोग उस क्लोजेट मतलब उस जगह से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे मार्गोट को बंद किया था।
ओके, रेडी चिल्ड्रेन, शी ग्लेंस्ड एट हर वॉच, मतलब टीचर आ जाती है, अब टीचर कहती है कि तैयार हो बच्चों, मतलब एक नज़र सबके तरफ डालती है, सबको देखती है एक नज़र कि सब बच्चे आ गए हैं नहीं आ गए हैं। ओके, गेस सेड एवरीवन, सब कहते हैं हाँ टीचर। आर वी ऑल हेयर, क्या हम सब यहाँ हैं, बच्चे कह रहे हैं एक दूसरे से। येस, सब बच्चे भी कहते हैं हाँ, मतलब मार्गोट को वहाँ बंद कर कर सब बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हम पूरे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। द रेन स्लैग्ड स्टिल मोर, और अब जो बारिश होती है वो और बंद हो जाती है। ओके, और बंद होनी शुरू हो जाती है, जो बारिश होती है वो बंद होनी शुरू हो जाती है। दे क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, और सब बच्चे चिल्लाते हैं। ओके, डोर की तरफ सब बच्चे चिल्लाते हैं। द रेन स्टॉप्ड, मतलब अब जो रेन है वो स्टॉप होने वाली है, मतलब इट्स टाइम टू ऊज आउट ऑफ द सन। ओके, अब नाउ सन इज गोइंग टू ऊज आउट, सन ऊज आउट होने वाला है, निकलने वाला है। इट वॉज एज इफ इन द मिडेस्ट ऑफ अ फिल्म। ओके, मतलब इट वॉज एट इफ इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट मीन्स बीच में, ऐसा लग रहा है जैसे कि फिल्म के बीच में ही एक लाइक एक एवलेंस आ गया हो। ओके, यहाँ पे है सी फिल्म कॉन्करिंग एंड एवलेंचे, एवलेंचे इज अ मडी रिवर। ओके, इट इज अ मडी रिवर। अ टॉर्नेडो, अ hurricane, a tornado is a type of storm which is used to come. ओके, और एक ह्यूरिकेन आ गया है। ह्यूरिकेन, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स बताए गए हैं, ह्यूरिकेन भी एक नेचुरल डिजास्टर है। ओके, ह्यूरिकेन भी आ गया है। ओके, ह्यूरिकेन एक साइक्लोन टाइप होता है। ओके, अ वोल्केनिक इरप्शन समटाइम्स हैड फर्स्ट गॉन रॉन्ग विद द साउंड। A volcanic eruption sometimes had first gone wrong with the sound apparatus, मतलब एक volcanic eruption बनता है। ओके, volcanic eruption, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते हैं वीनस पर। ठीक है, द मफलिंग एंड फाइनली कटिंग ऑफ ऑल नॉइजेस, और सारी नॉइज आनी बंद हो जाती है, मतलब मफलिंग मीन्स सारी धीमे धीमे बंद होने लगती हैं सारी नॉइजेस। ओके, all of blast and repercussions and thunders, and then second ripped the film from the projector and inserted in the place of beautiful tropical slide which did not move, और a tumor, मतलब सारी वॉइस आनी बंद हो जाती है। ओके, द वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड ग्राउंड टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब सारा वर्ल्ड बिल्कुल शांत हो जाता है। द साइलेंस वॉज सो इमेंस एंड अनबिलीवेबल दैट यू फेल्ट, जो वो साइलेंस थी वो इतनी अच्छी लग रही थी, अनबिलीवेबल थी, क्योंकि उन्होंने कभी साइलेंस को महसूस किया ही नहीं, हमेशा टिप 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 टिप, ड्राम एंड गश ऐसी आवाज़ आती रहती थी, ड्यू टू रेन ड्रॉप्स। ओके, ड्यू टू फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स, ड्यू टू इरप्शन, ड्यू टू टॉर्नेडो, ह्यूरियंस, इन सब की वजह से साउंड हमेशा वहाँ पर वीनस पर बनी रहती थी। पर आज साउंड नहीं थी। ओके, आज साउंड नहीं थी, आज बिल्कुल शांति थी, जो कि उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। ओके, उन्होंने कभी नहीं, साइलेंस इतना अनबिलीवेबल था, उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना साइलेंस कभी हो सकता है। योर ईयर्स हैड बीन स्टफ्ड और यू हैज लॉस्ट योर हियरिंग ऑल टुगेदर। ओके, मतलब आवाज़ की वजह से उनके जो कान थे वो भी बेकार से हो गए थे। ओके, द चिल्ड्रन पुट their hands to their ears, बच्चों ने एक दूसरे के मतलब बच्चों ने अपने अपने कानों पर अपने अपने हाथ रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि उनसे वो शांति बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राइट, उनसे वो शांति बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही थी? क्योंकि वो हमेशा से ऐसे एटमॉस्फेयर में ही रहे हैं। ओके, हमेशा से ऐसे एटमॉस्फेयर में ही रहे हैं, तो अगर एकदम से चेंज आ जाता है एटमॉस्फेयर में तो आपको नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, नहीं, है ना।
They stood apart, the door slid back, and the smell of the silence waiting world came out in them. The sun came out, और ये जो silence था वो किसका इशारा था? sun के निकलने का. अब सूरज आने ही वाला था. It was the color of the flaming bronze and it was very large. अब सूरज निकल आता है और कैसा लग रहा है जैसे कि कोई ब्रॉन्ज कलर का बड़ा सा गोला निकल आया हो. ओके, एंड द स्काई अराउंड इट वाज द ब्लेजिंग ब्लू द कलर, और उसका जो कलर हो जाता है बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है. ब्लेजिंग ब्लू. ओके, बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है. ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर, कैसा कलर हो जाता है? टाइल कलर. टाइल मतलब वाटर. टाइल का मीनिंग यहाँ पे क्या बताया गया? वाटर कलर हो जाता है. ब्लू वाटर कलर हो जाता है. एंड द जंगल बर्न्ड विद सनलाइट एज द चिल्ड्रन रिलीज फ्रॉम दिस स्पेल रश्ड आउट ईलिंग इनटू द स्प्रिंग टाइम्स. क्या है यहाँ पे? और जो बच्चे होते हैं वो खुशी की वजह से चिल्लाते हैं. ईलिंग मतलब चिल्लाना. into the spring time, into the time of their flourishment, क्योंकि अब उन्हें क्या मिल रहा है? अब उन्हें वार्म मिल रही है, वार्मथ मिल रही है सन की. अब उन्हें नरिशमेंट मिल रही है. देखो सन से क्या मिलता है हमें? विटामिन ई मिलती है सन से, राइट. हमें विटामिन ई मिलती है सन से, विच इज़ वेरी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वी शुड टेक सन बास्क. We should take sun bath twice or thrice in a week. We should take sun bath thrice in a week. It is extremely important to you. Okay, तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे वो सब बच्चे मतलब चिल्ला रहे थे. They were crying loudly. Okay, और बहुत ज़्यादा खुश थे. Okay, पर वहाँ पे मार्गोट नहीं था, क्योंकि मार्गोट नहीं थी, क्योंकि मार्गोट को उन लोगों ने बंद कर दिया था, राइट. नाउ डोंट गो टू फार, कॉल द टीचर, एंड देन यू आर ओनली 2 hours. यू नो, मतलब जो टीचर है वो कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, ज़्यादा दूर मत जाना वरना बारिश दोबारा शुरू हो जाएगी, तो तुम मतलब स्कूल में या अंडरग्राउंड प्रोजेक्शन जो बनी है उसमें तुम दोबारा लौट कर नहीं आ सकोगे, तो इसलिए ज़्यादा दूर मत जाना. पता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे बाद दोबारा बारिश होने लगेगी. यू वुडेंट वॉन्ट टू गेट काउट आउट. ओके, बाहर नहीं तुम लोग दिखने चाहिए, टीचर चिल्लाकर कहती हैं. ओके, बट दे वर रनिंग एंड turning their faces up to the sky and feeling the sun on their cheeks like a warm iron. और वो सब अपने चेहरा ऊपर करते हैं सन की तरफ, और अपने चीक्स पर उनकी जो गर्माहट सन की लगती है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वार्म आयरन किसी ने आयरन मीन्स प्रेस जो होती है वो लगा दी हो गालों पर, राइट. दे वर टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स. और वो सब अपनी अपनी जैकेट्स को उतार देते हैं और अपने आर्म्स को मतलब सन में बास्क करने देते हैं. ओके, ओह इट्स बेटर देन द सन लैम्प्स इजंट. मतलब वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे सन जब तक नहीं होता तब तक वहाँ पे एक आर्टिफिशियल सन लगा दिया था जिसे हम सन लैम्प कहते हैं, जो कि बिल्कुल मतलब जो कि सन की तरह ही अप्रॉक्सीमेटली सन की तरह ही हीट देता था. ओके, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव हीट देयर, राइट. हमेशा ठंडा मौसम रहेगा तो इट वुड बी वेरी क्रिटिकल, तो इसलिए वहाँ पे आर्टिफिशियल सन लैम्प लगा दी गई थी, राइट. तो एक बच्चा कहता है कि ये सन लैम्प से भी बहुत बढ़िया है, ये जो नेचुरल सन है वो सन लैम्प से भी बढ़िया है ना. इजंट मीन्स है ना, मच बेटर. बाकी बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है. They stopped running and stood in the great jungle that covered Venus. They grew and never stopped growing tremendously, even as you watched it. Okay, मतलब वो चलते जाते हैं जंगल में, भागते जाते हैं वीनस के जो जंगल था वीनस पर. इट वॉज अ नेस्ट ऑफ ऑक्टिपाई. वो किसका नेस्ट था? ऑक्टिपाई. ऑक्टिपाई इज ऑक्टोपस. ओके, ऑक्टिपाई मतलब ऑक्टोपस ही है यहाँ पे. ओके, clustering up great arms of flesh like weed. Okay, ऐसा लग रहा था, मतलब क्लस्टर हो जाते हैं जैसे कि वीड्स की तरह, मतलब बीजों की तरह वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, एक क्लस्टर को फॉर्म कर लेते हैं. ओके, we were just wait.
ये कैसा लग रहा था? ये ऑक्टोपस की नेस्ट की तरह लग रहा था। ओके, ये ऑक्टोपस का नेस्ट था। क्लस्टरिंग ऑफ ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक बीट वीविंग फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग। ये एक छोटे स्प्रिंग मानी जो सीज़न होता है उसकी तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ओके, for many years without sun. Okay, it was the color of rubber and ash. This jungle from the many years without sun. बिना सन के ये जंगल कैसा हो गया था? राख की तरह हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे जंगल्स दोबारा उगते थे, दोबारा नष्ट हो जाते थे, उगते थे, दोबारा नष्ट हो जाते थे। राइट, ये हो रहा था, नहीं हो रहा था? इट वॉज द कलर ऑफ स्टोन्स एंड वाइट चीज एंड इंक एंड इट वॉज द कलर ऑफ द मून। द चिल्ड्रन ले आउट लाफिंग ऑन द जंगल मैट्रेसेस। मतलब बच्चे खुशी से जंगल की घास पर, मैट्रेसेस मीन्स जो घास होती जंगल की, उस पर लेट जाते हैं। एंड हर्ड इट साइन एंड स्क्वीन अंडर देयर, जस्ट वेट। और जो बच्चे होते हैं ओके, वो मैट्रेसेस पर लेट जाते हैं। ओके, एंड हर्ड इट साइन एंड स्क्विंग अंडर द साइलेंट एंड अलाइव। और मतलब अपनी खुशी के हर पल बहुत साइलेंस से जीते हैं। ओके, दे ran among the trees, they slipped and fell, they pushed each other, they played hide and seek and tag, but most of all they, मतलब वो गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, गिरा देते हैं एक दूसरे को, मतलब ऐसे ही खेल रहे होते हैं। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलते हैं। टिक टैक जो छूने वाला गेम होता है, हाइड एंड सीक और छूने वाला जो गेम होता है उसे टिक टैक बोलते हैं। ओके, वो खेलते हैं। बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन। और सब लोग कैसे करते हैं? स्क्विंटेड मतलब अपनी बहुत ही आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें मतलब बिल्कुल, देखो जब आप लोग धूप में होते हैं तो कैसे आंखें कर लेते हैं? आपको सन की तरफ नहीं देख मिलता है तो आंखें छोटी छोटी कर लेते हैं ऐसे, मतलब आपकी पार्शली क्लोज्ड आइज़ होती हैं, है ना, पार्शली क्लोज्ड आइज़, उससे ही हम कहते हैं स्क्विंटेड। तो वो सन की तरफ स्क्विंट करते हैं, है ना, आंखें हल्की सी खुली और बंद रखते हैं। Until the tears ran down their faces, they put their hands up to that yellowness and that amazing blueness and they breathe at the fresh air। मतलब और वो क्या करते हैं? वो तब तक स्क्विंट करने लगते हैं जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते हैं, और वो अपने हाथों को सूरज के आगे रख देते हैं उस धूप से बचने के लिए। राइट, और उनकी जो फेस थे जो ब्लू एंड रेड थे वो अब बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस हो जाते हैं। एंड दे ब्रीथ इट ऑफ द फ्रेश एयर, और वो फ्रेश एयर्स को ब्रीथ करते हैं। ओके, एंड लिसन टू द साइलेंस विच सस्पेंडेड दैम इन अ ब्लेस्ड सी ऑफ नो साउंड एंड नो मोशन। और वो साइलेंस को एंजॉय करते हैं जिसमें ना कोई आवाज़ होती, कोई आवाज़ नहीं होती इस साइलेंस में। ओके, They looked at everything and savored everything। वो हर तरफ देखते हैं और हर तरह की हर चीज़ की एक स्मेल ले लेते हैं। सेवर्ड का मतलब होता है एक लंबे समय के लिए एक स्मेल ले लेनी जो कि लंबे समय तक याद रहे। ओके, हर चीज़ की स्मेल ले लेते हैं, सन की हीट की, सन की वार्मथ की, हर चीज़ की स्मेल ले लेते हैं। देन वाइडली लाइक एनिमल्स एस्केप फ्रॉम देयर केव्स। और जंगली जानवरों की तरह वो अपने अपनी गुफाओं में जाते हैं, मतलब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दे रैन इन शाउटिंग सर्कल्स, दे रैन फॉर एन आवर एंड डिड नॉट स्टॉप रनिंग। और 1 घंटे तक वो दौड़ते ही रहते हैं बिना रुके। Right, and then in the midst of their running, one of the girl wailed। और जब वो रनिंग कर रहे होते हैं तो एक लड़की चिल्लाती है। वेल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। एक लड़की रोती है, रोते हुए कहती है, सब लोग रुक जाओ, एवरीवन स्टॉप्ड। द गर्ल स्टैंडिंग एट द ओपन हेल्ड आउट हर हैंड्स। और वो अपने हाथों को आगे करती है, क्या चेक करने की कि कहीं बारिश तो नहीं होगी, क्योंकि उस लड़की के ऊपर एक ड्रॉप गिर जाती है पानी की। ओके, ओ लुक शी सेड ट्रैम्बलिंग। और डरते हुए, बहुत कांपते हुए वो कहती है, अरे देखो, बहुत ट्रैम्बल करके। ओके, ये वर्ड बहुत ट्रैम्बल करके कहती है। दे केम स्लोली टू लुक एट हर ओपन पान। और वो
सारे हल्के हल्के आते हैं और अपनी पान को स्काई की तरफ कर देते हैं। क्या चेक करने के लिए? बारिश तो नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए। एंड द सेंटर ऑफ इट कप्ड एंड ह्यूज वॉज अ सिंगल रेन ड्रॉप, शी बिगेन टू क्राई। और फिर उनके कप मानी वो एक कप लाइक अपने पान को बना देते हैं, इस तरीके से कप की शेप दे देते हैं अपने पान को, और जब आगे फैलाते हैं तो एक रेन ड्रॉप उनके पाल में गिरती है और वो सब लोग रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दे ग्लैंस्ड क्वाइटली एट द सन, ओ मतलब वो सन की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं, ओ मतलब बहुत दुखी से कहते हैं। अ फ्यू कोल्ड ड्रॉप्स फेल ऑन देयर नोजेस एंड देयर चीक्स, और कुछ उनकी नाक और थोड़ी पर भी गिरती हैं कुछ ड्रॉप्स, ओके, और उनके मुंह पर भी गिरती हैं। द सन फेडेड बिहाइंड अ स्टेयर ऑफ मिस्ट, और जो सूरज है वो हल्के हल्के छिपने लगता है, मिस्ट होने लगता है, ओके, धुंधला होने लगता है, राइट। अ विंड ब्लू कोल्ड अराउंड दैम, और उनके चारों तरफ एक ठंडी हवा चलने लगती। क्यों? क्योंकि अब बारिश होने वाली थी, राइट। दे टर्न एंड स्टार्टेड टू वॉक बैक टुवर्ड्स द अंडरग्राउंड हाउसेज, और वो दोबारा भागने लगते हैं अपने अंडरग्राउंड हाउसेज की तरफ, राइट। एट दिस साइड्स दिस स्माइल्स वेनिस्ड अवे, और उनकी जो खुशी होती है वो सब धुंधली हो जाती है, ओके। और मार्गोट की बात करें इस तरफ, मार्गोट का क्या हो रहा है? मार्गोट अभी भी उस क्लोजेट के अंदर बंद है, मीन्स उसने अभी तक कुछ एंजॉय नहीं किया था, राइट। अ ब्लूम ऑफ थंडर startled them, and like leaves before a new hurricane, they tumbled upon each other and ran। मतलब hurricane की तरह, hurricane जैसे मैंने बताया एक तूफान की तरफ एक दूसरे की तरफ भागते हैं वो, ओके। लाइटनिंग स्टक 10 miles away, और 10 मील दूर लाइटनिंग होने लगती है बिकॉज ऑफ रेन होने वाली थी ना। 5 miles away, a half mile, the sky darkened into midnight, और 5 मील दूर जो स्काई है वो ब्लैक होने लगता है, ओके। ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो गई है, आधी रात हो गई है। इन अ फ्लैश मीन्स जो फ्लैश होती है उसकी। They stood in the doorway of the underground for a moment until it was raining hard, और वो तब तक नहीं जाते हैं जब तक रेन तेज तेज ना होने लगे। They were closed the door and heard the gigantic sound of the raindrop in torrents and avalanches everywhere and forever। मतलब अब वो रेन की आवाज़ सुनने लगते हैं और तूफानों की आवाज़ सुनने लगते हैं। Will it be 7 more years, क्या ये 7 साल और होगी? Yes 7, हाँ 7 साल और होगी, बच्चे कह रहे हैं। Then one of them gave a little cry, Margot, और फिर उनमें से एक बोलने, अब उनको मार्गोट की याद आई होती है। अब उनमें से एक चिल्लाता है कि अरे मार्गोट ने ये सब तो देखा ही नहीं, मार्गोट को तो हमने बंद कर दिया। तभी सब कहते हैं क्या? शी स्टिल इन द क्लोजेट वेयर वी लॉक्ड हर, मतलब वो अभी तक क्लोजेट में जहाँ पे हमने उसे बंद किया था, जहाँ पे हमने उसे लॉक किया था। मार्गोट, दे स्टूड एज इफ समवन हैड ड्राइवन दैम लाइक अ many stars into floor away। They glanced out at the world that was raining now and raining steadily। अब वो मतलब बहुत अफसोस करते हैं कि मार्गोट ने इस नज़ारे को नहीं देखा, उसने इस नज़ारे को खो दिया, और ये सब उनकी वजह से हुआ था क्योंकि अब दोबारा रेन होने लगी थी। They could not meet each other's glances, वो एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। इसके लिए किस लिए? क्योंकि उन्होंने मार्गोट को बंद कर दिया था। Their faces were soul-man and pale. They looked at their hands and feet, their faces down। मतलब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं अपना सिर नीचे करके कि हमने मार्गोट के साथ क्या कर दिया। Okay, Margot, one of the girls said, well, no one moved। मतलब वो एक चिल्लाती कि मार्गोट क्या हुआ, तभी एक लड़की कहती कि कोई नहीं बोलेगा। अब एक लड़की कहती है कि कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उन्हें मार्गोट को पता ना चल जाए, जिससे कि उन लोगों ने उसे बंद किया है। ओके, गो ऑन, विस्पर्ड द गर्ल। अब लड़की हल्के से कहती है कि चलो, मतलब विस्पर्ड का मतलब होता है बहुत हल्के से कहना, मतलब विस्परिंग करना ऐसे, चलो, राइट, ठीक है। They walked slowly down the hall in the sound of the cold rain, और वो कोल्ड रेन में हॉल की तरफ जाते हैं हल्के हल्के। They turned through
the doorway to the room in the sound of the storm and thunder, lightning on their faces blue and terrible. Lightning की वजह से उनके फेस बहुत मतलब वो लोग डर जाते हैं, राइट. दे वॉकड ओवर टू द क्लॉजेट डोर स्लोली एंड स्टूड बाय इट. और वो हल्के हल्के क्लॉजेट की डोर की तरफ जाते हैं जहाँ पे मार्गोट को उन लोगों ने बंद किया था, और वहीं पे हल्के से खड़े हो जाते हैं, राइट. वो लोग खड़े हो जाते हैं. बिहाइंड द क्लॉजेट डोर वॉज ओनली साइलेंस. दे अनलॉक द डोर इवन मोर स्लोली एंड लेट मार्गोट आउट. और वो हल्के से क्लॉजेट डोर को ओपन करते हैं, बिल्कुल हल्के से, जिससे मार्गोट को पता न चले. ओके और मार्गोट को बाहर कर देते हैं. ओके मार्गोट को आज़ाद कर देते हैं उस क्लॉजेट से. ओके पहले तो उन लोगों ने बंद कर दिया था मार्गोट को, फिर वो हल्के हल्के जाते हैं. ओके वहाँ से. ओके उन्हें बुरा भी बाद में बहुत लगता है कि हमने मार्गोट को क्यों बंद कर दिया. ओके पर वो हल्के हल्के जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके मार्गोट को बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के दबे पैर होकर हल्के से उसे खोल देते हैं और मार्गोट वहाँ से बाहर निकल जाती है. एंड दैट्स इट. With this, we come to end of our story. This was your whole story. I hope it is clear to you. Let's see 2 questions which you have to do. Okay, my throat is still paining a lot. Read the questions. All summer in a day. Which detail shows that the story takes place in the future? कौन सी चीज़ इसमें से बताती कि जो स्टोरी है उसने मतलब वो एक फ्यूचर पे डिपेंड है. ओके फर्स्ट क्वेश्चन. Give me the answer of this question. Next question. All summer in a day. The setting of the story is setting क्या story की. Answer the question. Answer both of the question. So with this we come to an end of a chapter. That's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. And this story is also bind up. Okay. So I hope the explanation of the story is clear to you. Okay. Though it was very lengthy story, but we have finished it rapidly, right? So yeah. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye guys. That's it. And if you love this video, don't forget to give this video a big like, right? Subscribe my channel if you haven't do it, and press the bell icon as well so that you'd never miss out any of my video which I'll post in future. Okay, so that's it. Bye bye. Make sure you like the video.